into situations of difficulty, then wit and wisdom help us to come out from that situation. बुक है ना दोनों के पास? ठीक है. So page 2 निकालो. आयुष का page 2 पे नहीं हो तो that is why is the quality of wit and wisdom important. लिखो humor and wisdom help us to come out from difficult situation. And we keep calm at such situations. We can solve problem peacefully. Problems, हम अपनी problems को कैसे solve कर सकते हैं आराध्या? Peacefully. So these are required. इसलिए ये required है. Wit and wisdom are required. चलो अगला सवाल देखिए. Now, why do you think kings and queens prefer to have witty people among their courtiers? क्यों वो तेनालीराम जैसे witty people को रखते थे? So witty courtiers. Courtiers का मतलब होता है दरबारी. Like तेनालीराम help king to solve, to give solution दे देते थे and suggestions. कब देते थे? When during day-to-day problems in court. Day-to-day problems coming in court and cases. बहुत सारे केस आते हैं इनके पास. Coming to court. They help kings to give justice. क्या तेनालीराम मदद करता था जस्टिस देने में? They help king to do justice. इसलिए बहुत पैसे देकर भी, ऊंची पगार सैलरी देकर भी ये राजा कृष्ण देवराय जैसे लोग तेनालीराम को रखते थे क्योंकि उनमें विट और ह्यूमर था. अगला क्वेश्चन देखो भागीश. If you were asked to solve a disagreement between two people, what approach would you take? अगर तुम्हें कहा जाए कि तुमको रविंद्र और आरव शर्मा के बीच झगड़ा निपटाना है तो तुम ऐसी स्थिति में क्या करोगे? I would, ठीक है, complain for both of them in police station and put both of them into jail. Would it be the correct solution? I would listen both carefully. मैं दोनों को ध्यान से सुनूंगा. Both carefully and suggest them to talk to each other. और मैं उनसे ये कहूंगा talk to each other as most of the quarrels, जितने भी झगड़े होते हैं, start due to misunderstanding.
मान लो अगर आरव कहता है कि अंकल ने पीछे से उसके शर्ट में पेन लगाया है, पेन का निशान, तो क्या पता किसी भूत ने लगा दिया और अंकल ने ना लगाया हो। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेरल्स स्टार्ट्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। क्वेरल starts due to misunderstanding. And can be resolved by mutual talk. Mutual talk समझते हो? आपस में बात करके। And can be resolved. आरव शर्मा चश्मा बनवा लो। Can be resolved by mutual talk. to उससे सुलझाए जा सकते हैं। तो I would prefer, मैं this way को प्रीफर करता, उनकी कंप्लेंट नहीं करता। I would prefer this method. क्वेश्चन कहा गया है, have you been in such a situation when a small misunderstanding led to a big problem? Yes, I was trapped. शिवांश क्या बोलेगा? I was trapped in such a situation during interval. बात नहीं करो. During interval, my pen was missing. I blamed Hitesh that you have taken or stolen my pen. So I had a fight with Hitesh, and now I shifted my seat. But after some time I found my pen in my pocket. Okay, I came back to Hitesh and felt sorry for the misbehavior with Hitesh, and then we again resolved the problem. बोलो बात समझ में आ गई? So yes, I was trapped in a such situation of misunderstanding before some days. I was trapped in such a situation when my pen got missing. जबकि मेरा कौन सा पेन? पार्कर पेन. पार्कर पेन got missing from my pencil box. I blame for this on my best friend. Now we had a hot talk. हम लोगों में क्या हुआ? Now we had a hot talk. बातचीत हुई. And we changed our place. And we changed our places. ठीक है? After one period, I realized that my pen is in my pocket. Is in my pocket. I immediately approached to Hitesh. Approached to that friend. Felt
felt sorry and resolved the matter. और इस तरीके से मैंने मैटर को रिजॉल्व कर दिया. When next time my pen was missing, I have not blamed it for Hitesh. However, it was taken by Hitesh. So in this way, my best friend remained my best friend. अगला निकालिए पेज नंबर 7. चलो पेज नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखो और इसको अमेंड करो. अगर सही है तो ट्रू लिखो. लेट अस डिस्कस पे आओ. लेट अस डिस्कस. तो द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोएम. ये फॉल्स है. और ट्रू क्या होगा? दैट इज क्वीन yawned ड्यू टू टायर्डनेस, not to insult him. क्वीन, ये फॉल्स है ना. इंसल्ट थोड़ी करना चाहती थी. क्वीन इंसल्ट करना चाहती थी क्या? क्वीन yawned due to tiredness. Sleepiness. Yawned due to tiredness. ठीक है. She had no intention to insult Raja Krishnadev Rai. Had no intention to insult king. दूसरा देखो. Tenali Ram immediately went to king and convinced him to talk to Queen Himanshi. क्या तेनाली राम तुरंत राजा के पास गए और बोले आप रानी से अपना झगड़ा सुलझा लो? False. Tenali Ram made a plan. Tenali Ram made a plan and clever strategy. And started waiting. Made a strategy. Waiting to execute his plan. वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अब समय का इंतजार करते थे. एंड स्टार्टेड वेटिंग. एग्जीक्यूट का मतलब निष्पादन, अपने कार्य के निष्पादन हेतु. निष्पादन का मतलब काम को अंजाम देना. एग्जीक्यूट का मतलब कोई चीज करना. नाउ इशिता, the courtiers admired the king poem and praised his क्या and started waiting. और वेट करने लगे to execute his plan. कि कब सही समय आएगा और कब मैं अपना प्लान एग्जीक्यूट कर लूंगा. इशिता, the courtiers admired the king's poem. क्या दरबारियों ने राजा की पोयम को बहुत तारीफ की? करेक्ट. आप बोलो. कोर्टी. फॉल्स. जैसा कि इशिता ने बताया. इसे कैसे पता चला? क्या ये कृष्णदेव राय के समय की थी? यस. नाउ दैट इज कोर्टियर्स अवॉइडेड द किंग. वो एक एक करके खिसकने लगे. अवॉइडेड द किंग and made excuses. और बहाना बनाने लगे. राजा जी वो मेरी बिटिया की तबीयत खराब है, मैं थोड़ा जाना चाहता हूँ, ऐसा है वैसा है, मेरी खाला जान बीमार है, मैं जाना चाहता हूँ, ऐसा. and left the court. और उन्होंने क्या किया?
and made excuses and left the boat one by one. One by one. अगला देखो. The ministers in the court were eager to hear Tenali Ram's idea. क्या मिनिस्टर शौर्य ईगर थे कि तेनालीराम अपना आइडिया दें कि पैडी कल्टीवेशन कैसे किया जाता है? वो सुनने के लिए उत्सुक थे क्या? फॉल्स. नाउ मिनिस्टर मॉक्ड तेनालीराम, मजाक उड़ाया. मिनिस्टर्स mocked, that is made fun of Tenali Ram's idea. Of paddy cultivation. धान की फसल के लिए जो आइडिया उसने दिया था कि बीज को कैसे रखना है और जो रखेगा उसे यान नहीं करना है, जमाई नहीं लेनी है. जमाई से बीज का क्या, बीज तो बिखेरने होते हैं, उसमें जमाई लेने होते हैं. They have made sarcastic remark over तेनालीराम साहब. ये बात मालूम है उन्होंने कैसे रिमार्क बनाए? हाँ, जैसे इनके बीच चांद से उतर के आए हों, ऐसे सरकास्टिक रिमार्क. ये चांद से लेके आए हैं भी. तो yes, these are magical seeds. They have made sarcastic remark over Tenali Ram's. They made sarcastic, मजाकिया रिमार्क्स बनाए on तेनाली राम्स आइडिया. जैसा कि इशिता ने बताया. कैसे उसे पता चला? क्या वो तिरुमलम्बर थी पिछले जन्म में? उसे इतना कैसे पता? यह अमुक्त मालयदा उसी के समय में लिखा गया. ये तो पता नहीं है, वही बताएगी. अमुक्त मालयदा उसके समय में, या जन्मावती परिणाम तो नहीं लिखा गया था तुम्हारे समय? कैसे तुम? The king never realized his mistake and continued to stay angry with Queen. आरव शर्मा, क्या राजा ने कभी अपनी गलती महसूस नहीं की और रानी से हमेशा नाराज रहा? King realized his mistake when he himself yawned and immediately went to Queen's court या Queen's house and apologized. ठीक है ना? Queen corridor. तो King ने क्या किया? Realized his mistake when he himself yawned. जब उसने जमाई ली and immediately had gone. कहाँ चले गए? Had gone to Queen's corridor. And said sorry. Let us think and reflect. Let us think and reflect. कुछ सीन पैसेज भी आ सकते हैं और कुछ अनसीन पैसेज आ सकते हैं. तो जो दो सीन पैसेज हैं इनमें से एक आएगा. मैं आपको, है ना, दोनों आ सकते हैं. सीन भी आ सकते हैं और अनसीन भी आ सकते हैं. तो दो तुम्हारे में सीन पैसेज हैं.
उनमें से मैं लिखा देता हूँ, आंसर वही लिख देना तुम। चलो, क्योंकि हर्ष के तो 40 नंबर आएंगे, बाकियों का मुझको मालूम नहीं है। ये हर्षित हो जाएगा हर्ष जब 40 नंबर आएंगे तो। अब आगे देखो, तुम इतना टैलेंट खरीदते हो कि ये तुम्हें पहले से ही है। अगला देखिए, Why does the queen believe that only Tenali Ram can help? That is, queen believes. तो ये पहले वाले का बता रहा हूं। तो queen believes, पहला लेटर कैपिटल लिखना। That वो रानी, that only Tenali Ram can help in this matter. Help in this matter, as he was quick-witted and wise. वो तेज बुद्धि के थे, कुशाग्र बुद्धि के थे। जैसे घास के तिनके के आगे की नोक होती है, कुश का अग्र हिस्सा, उसको क्या कहते हैं बताओ? ये घास है, घास के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? लव। और निचले हिस्से को क्या कहते हैं? कुश। और इसके इस हिस्से को क्या कहते हैं? कुशाग्र। इसी को कहते हैं क्विक विटेड। कुशाग्र बुद्धि के थे, इतनी तेज उनका दिमाग था जैसे घास के तिनके की नोक। As he was quick-witted and wise. इसीलिए रानी ने और किसी को ये बात नहीं बताई। अगला देखो, What does the queen's statement? If I had known this would happen, I would have chosen some other day. अगर मुझे पता होता कि राजा जी हमसे नाराज हो जाएंगे तो मैं राजा जी से कह देती, राजा जी मैं कल आपकी स्टोरी सुनूंगी। मैं आज थक गई थी पूरा दिन, मुझे जमाई आ गई। हमें क्या मालूम था ये महीना भर तक नाराज रहेंगे हमसे। तो इसका क्या मतलब है? इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। She regret the unintended misunderstanding. इसका आंसर क्या होगा? बी। वो अनइंटेंडेड, जो वो नहीं चाहती थी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर शिवांश, हितेश का टिफिन हर इंटरवल में खाता रहा। अगला देखो, How does Tenali Ram's response reflect his wisdom and problem solving skills? कैसे तुम्हें पता कि जो तेनाली राम ने किया वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दिखाता है? तेनाली राम्स रिस्पॉन्स शोज, तेनाली राम्स रिस्पॉन्स शोज, या वो सीधा चला जाता राजा के पास और कहता, जाओ राजा तुमने गलत किया है, अपनी पत्नी से रिजॉल्व करो। राजा कहता, निकल जाओ मेरे दरबार से, इसको जेल में डाल दो। लेकिन तेनाली राम ने इनडायरेक्टली उसको बताया। रिस्पॉन्स शोज दैट हिज पेशेंस, उसके धैर्य को दिखाता है। पेशेंस, विजडम and problem solving ability. ये चीज दिखाती है कि तेनाली राम ये सब चीजें थी। Fill in the blanks. चौथा सवाल देखो, fill in the blanks by choosing the correct option. The king reaction shows that he is sensitive and takes great pride in his poetry. वो बहुत सोचता था कि उसने बहुत अच्छी पोएम बनाई है। वैसे भी उसने 2 बड़े ग्रंथ लिखे हैं। अमुक्त मालयदा में दिखाया गया है कि राजनीति कैसे की जाती है।
और ये जम्बावती परिणाम में दिखाया गया है कि कभी कोई दुश्मन आए तो कहां कहां से अटैक करो कि उसे पूरा किए। ऐसे 324 साल राज्य नहीं किए विजयनगर में, उसने जो लिखा उस पे राजा चले और उन्होंने राज किया, उसने पूरी राजनीति लिख डाली। तो क्या उसे गर्व नहीं होगा इतनी महान किताबें लिखने में? और इतनी महान किताबें अगर तुम लिखोगे शिवांश और हर्षित जमाई ले ले तो टेक्स ग्रेट प्राइड। मान लो तुम तिरुमलम्बल के पास जाते। अगला सवाल देखो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। दैट इवनिंग, इन्हीं दोनों में से एक आएगा, एक तो समझ में आ गया ना तुमको। अगला सवाल देखो कि है 3 है तो उनके भी करा देंगे, जो भी आएगा हम सब उसका देख लेंगे। कल सुबह तो क्लास हो रही है ना, सुबह नहीं हो पाएगा तो शाम को भी करा देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका सब करा देंगे। सिलेबस आपके में भेजा है? ऐसा आपको ही भेज दिया था। तो वो अभी हम चेक कर लेंगे, थोड़ा सा करते हैं फिर चेक करते हैं, कल उसके हिसाब से भी करा देंगे। अगला देखिए, चलो आप ये ना सोचो सिर्फ फर्स्ट ही 40 लाएगा, आप भी ला सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सूटेबल एक्सप्लेनेशन। प्रत्युष यादव, when the king said I let my pride blind me, it means that, इसका क्या मतलब है अराध्या? जब वो कहता है मैंने अपने घमंड में खुद को अंधा होने दिया, his pride prevented him, बिल्कुल सही, him from seeing the situation clearly, from seeing। इतना तुम ईमानसी कैसे जानती हो? क्या तुम भी उसी दरबार में थी? क्लियरली राजा के घमंड ने उसको परिस्थिति ठीक से समझने नहीं दी। अगला सवाल देखिए, why does the queen say if you like we can leave this quarrel behind? Does she accepted his excuse? दिव्या, क्या रानी ने उसका एक्सक्यूज स्वीकार किया? उसने जब सॉरी बोला, उसने ये बोला कि मैं तुम्हें जाओ क्षमा करती हूँ राजा, उसने ये नहीं बोला। उसने कहा हम इस क्वेरल को पीछे ही छोड़ देते हैं राजा जी, क्या क्षमा मांगना, आप इतने बड़े आदमी हो और मैं तो रानी हूँ, हमें इससे छोड़ देना चाहिए, सॉरी और मत बोलो, ऐसे बोलो। इसका मतलब क्या हुआ? That the queen says so because she wants to forgive and move on peacefully. The queen said, वो नहीं चाहती थी कि राजा की डिग्निटी कम हो, राजा क्षमा मांगे अच्छा लगता है, इतने बड़े देश का राजा। So queen क्या ये चाहती थी? Does not want to pull down queen's dignity, ये king's dignity। And they should move on peacefully। वो ये चाहती थी कि राजा अपनी, इतनी बड़ा राजा है, सॉरी मत बोले, सिंपली बस खुश रहे। अगला देखो, now fill in the blanks by choosing the correct option from those given in the brackets। Mayank, the king acknowledges that his pride clouded his judgment, which shows, इससे क्या दिखाई पड़ता है? बताओ।
मैच्योरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। उसने ये देखा कि उसके घमंड ने उसके जजमेंट को प्रभावित कर दिया, तो ये उसकी मैच्योरिटी, वो कितना परिपक्व है। एंड सेल्फ अवेयरनेस, उसकी परिपक्वता और स्वयं के प्रति जागरूकता को दिखाता है। ठीक है, उसने देखा कि उसकी प्राइड ने उसके जजमेंट को प्रभावित किया है। सो विच क्वालिटी ऑफ किंग इज रिफ्लेक्टेड ड्यू टू दिस? सेल्फ अवेयरनेस एंड किंग वॉज मैच्योर। इससे उसके इंटेलिजेंस का नहीं पता चलता है। अगला देखिए, अंकन। स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक दैट द क्वींस रिस्पॉन्स टू किंग अपॉलजी शोज अबाउट हर। रानी के बारे में क्या पता चलता है? अंकन। The queen was kind-hearted and forgiving. करेक्ट, क्वीन वाज, तुमने बिल्कुल वही आंसर बताया जो सही है। काइंड हार्टेड, मयंक होता तो वो भी यही बताता। काइंड हार्टेड एंड फॉरगिविंग। अगला सवाल देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। तो वाई वाज विजयनगर अंपायर कंसीडर्ड टू बी गोल्डन ईरा ड्यूरिंग कृष्णदेव राय रेन? जब उनका शासन चल रहा था तो इसे गोल्डन ईरा हर्षित क्यों कहा गया? बिल्कुल सही। द विजयनगर अंपायर, विजयनगर एम्पायर was considered as golden era. Era during Krishnadev Rai reign. कोई भी नाम हो, प्रॉपर नाउन, उसे कैपिटल में लिख रहा। कृष्ण देव रायाज रेन। रेन का मतलब होता है शासन का। एज आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड एज एट दैट टाइम। तीनों में खूब बढ़ोतरी हुई। बहुत बड़े बड़े वो हम्पी में विरूपाक्षपुरा कौन सा था, ये मंदिर बना, विरूपाक्ष टेम्पल। At that time, art, literature, साहित्य में बढ़ोतरी हुई, कला में और शिल्प कला में। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? भवन निर्माण कला। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने। हाथ की थाप मारो, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, ऐसे आवाज आती है मंदिरों में। वो म्यूजिकल टेम्पल है भाई, टूटने के बाद भी फ्लरिश्ड। ये सब हर्षित ने वहां जाके देखा है, ऐसे वो नहीं बता रहा है। अगला सवाल देखो, that is how did Tenali Ramakrishna gain a special place in King's Court? हर्ष, करेक्ट, बताओ बेटा। तेज बहुत हो लेकिन चालाक भी हो, पत्ते खोलते नहीं हो। बताओ बेटा। हाँ आप बताइए। हाँ, यही हर्ष बोलता है, ये सब बता देता है तुम्हें। इसकी मुस्कुराहट ही इसका जवाब, इसके कपड़े की चमक, टाइड की चमक। अगला देखो, तो तेनाली राम कृष्णा गेंड स्पेशल स्टेटस। वैसे तो वहां अष्टदिग्गज थे, लेकिन उनमें भी खास कौन था? गेंड
स्पेशल, जैसे बीरबल अकबर के दरबार में नवरत्न में स्पेशल थे, वैसे तेनालीराम अष्ट दिग्गज में नव स्पेशल। इन्हीं दोनों की कहानियां ज्यादा चलती हैं, अकबर बीरबल और कृष्णदेवराय और तेनालीराम। गेंड स्पेशल स्टेटस, इस पर एक बहुत वो भी बन चुका है सीरियल, 50 एपिसोड, तुम देख सकते है ना, देखे होगे। स्टेटस किस वजह से, जैसा कि हर्ष ने बताया, ठीक है, इन किंग्स कोर्ट ड्यू टू हिज क्विक विटेडनेस, क्विक बात नहीं करो, विटेडनेस एंड विजडम, ये दो चीजें थी इन दोनों की वजह से। हाउ डिड द क्वेरल बिटवीन द किंग एंड क्वीन अफेक्ट द पैलेस और राज, क्या इसने पैलेस को प्रभावित किया, इन दोनों के बीच झगड़े हो कैसे? पैलेस become dull and lifeless. लिखो, द पैलेस बिकेम डल एंड लाइफलेस। Dull and lifeless as the king stopped going Queen's Corridor. जब से राजा ने रनिवास में जाना बंद किया, जहां रानियां रहती हैं उसे रनिवास कहते हैं। What strategy did Tenali Ram use to make the king realize his mistake? क्या स्ट्रेटजी अपनाई रविंद्र? पैडी सीड्स दिखाते। Tenali Ram used Tenali Ram used a humorous idea of sowing paddy seeds. Which contained no meaning. No meaning. It made King yawn and helped King to resolve the matter, to realize his mistake. उसने एक मजाकिया आइडिया निकाला। ह्यूमरस का क्या मतलब है? मजाकिया आइडिया निकाला, जिसका कोई मतलब नहीं था कि दाने को ऐसा डालो जमाई ना लो। दाने तो दाने हैं, उसको कैसे भी डालो, बीज तो बीज है। अगला देखिए, what was the reaction of courtiers when Tenali Ram introduced his special paddy seeds? दृष्टि, दरबारियों की क्या प्रतिक्रिया थी जब तेनाली राम ने अपने खास बीज दिखाए? When Tenali Ram introduced his special paddy seeds,
Then courtiers mocked him. Courtiers mocked him and made sarcastic remarks. How does the story conclude and what lesson can be learned? हितेश, इस कहानी से तुम क्या सीख सकते हो? सर हमें फैसला सोच समझ के और सूझबूझ से लेना चाहिए। करेक्ट। छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए, जैसा कि हर्ष ने कहा। द किंग apologized and peace is restored. does है तो apologizes। दिव्या ध्यान दीजिए, does वर्ड है तो apologized नहीं लिखोगी, प्रेजेंट टेंस में पूछा गया। तो द किंग apologizes, ध्यान दे रहे हो? does वर्ड लिखा है कि नहीं? तो does है, इसका मतलब है was होगा तब तुम सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो, और does होगा तो प्रेजेंट टेंस में। समझ में आई बात? तो द किंग apologizes, जाइजेस क्षमा मांगता है, एंड पीस इज रिस्टोर्ड। वॉज नहीं, इज रिस्टोर्ड और पीस आ जाती है। द स्टोरी टीचर्स द वैल्यू ऑफ विट एंड कम्युनिकेशन। द स्टोरी teaches us that by wit and mutual talk we can resolve our matter. Let us learn अब ये देखो, तो इन गैप्स में हमको ये फिल करना है। लेट अस लर्न, पहला देखो, माई मदर इज क्वाइट विटी, वो बहुत बुद्धिमान थी, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो चीजों में मजाक बना लेती थी। ह्यूमरस का मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर, जैसे हर चीज में थोड़ा बहुत मजाक बना लेना, उससे क्लास लाइट हो जाती कि भारी हो जाती है? लाइटली हम सीखते चले जाते हैं। और बहुत बोरिंग पढ़ते रहो तो क्या पढ़ने में मजा आएगी? ठीक है, अब जरा देखिए, तो अब इसमें माई मदर is quite witty and her sense of humor always lightened distressful moment. One as a family dinner, an argument began over a minor issue, and first, दिव्या अधिकारी बताओ, and बोलो, and murmur swept through the room, make everyone। तो पहले का क्या लिखोगे? मरमर का मतलब फुसफुसाहट, पूरे कमरे में मरमर फैल गई। Swept through the room, making everybody इनकंफर्टेबल। अमर्त्या, अगले का आंसर बताओ। जब एक माइनर इशू हुआ, किसी ने कहा कि चावल के दाने काले हैं, सबने कहा काले हैं,
ये पुलाव, तो पुलाव खाने का मजा सब चला गया। एक ने चावल उठा के दिखा दिया, काला चावल बना दिया। तो सारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हुआ कि जब कि उसने लौंग उठा ली, तो अब वो लोग सोचा चावल काला है, तो पूरे कमरे में फुसफुसाहट आ गई। अब जरा देखिए, किसी ने मिर्च उठा ली और दिखाया ये तो चूहे की पूंछ है। अब बस सबके में चूहे की पूंछ। फिर दूसरे ने काजू उठा लिया, ये छिपकली का मुंह है। अब पूरे कमरे में फुसफुसाहट फैल गई और माँ ने इतने मन से पूरा दिन खाना बनाया। अगले का आंसर मरता है, बताओ। And just as things were getting serious, she made a clever remark and laughed. आगे, ठीक है। And laughter repelled the great ring. दूसरे का आंसर क्या होगा? Laughter repelled. Repelled का मतलब जैसे सरसराहट फैल गई हो। ऐसे मान लो रस्सी में एक तरफ तुम ऐसे करो ऑसिलेशन, तो क्या वो उसका जो रिपल्स होते हैं वो दूसरे एंड तक चले जाते हैं? तो वैसे ही उनके हंसी की बात बोलते ही सारे कमरे में हंसी छा गई। रिपल्ड का क्या मतलब है? रस्सी ऐसे करो, उसके एनर्जी दूसरे में पहुंच जाएगी। रिपल, उसे रिपल कहते हैं। इट रिपल्ड थ्रू। अब कमरे में हंसी छा गई। शिवांश तीसरे का बताओ। दैट इज, उन्होंने किया, द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्ग्यूमेंट, वो क्या हो गया? स्टॉर्म्ड ऑफ का क्या मतलब है? खिसक लिया। जो बोल रहा था लौंग को काला चावल, वो खिसक लिया, कमरे से ही चला गया खाना छोड़ के। नहीं तो सब लोग कहते खाने का मजा खराब कर। खिसक लेना। रिपल्ड का मतलब पूरे कमरे में खुशी छा जाना। रिपल्ड, खुशी छा जाना। फुसफुसाहट, क्या तुम्हारी प्लेट में भी काला चावल है? तुम्हारी में भी दिखा। हाँ मेरी में भी, सबकी प्लेट में लौंग था। फुसफुसाहट होना। दृष्टि, चौथे का आंसर बताओ। नाउ everyone disapproved the action and hush fell over. ठीक है, disapprove and hush fell over, इसका मतलब देखना पड़ेगा। किसी को मालूम है तो बताओ। हाँ चेक कर लेता हूँ फिर भी। hush, hush fell over हिंदी मीनिंग। हाँ बिल्कुल सही, खामोशी छा गई। सबने उसके बात को क्या किया? डिसअप्रूव कर दिया कि चावल में काले दाने नहीं हैं, और सन्नाटा छा गया। हश फेल ओवर, इसका मतलब क्या हुआ? सन्नाटा छा गया। मयंक तेज आवाज में बोलो, फिफ्थ का आंसर। Mind raised back. So my mind raced back. मेरा दिमाग पीछे गया कि हुआ क्या था और मम्मी ने, मेरी मदर ने उसे कैसे संभाला। My mind raced back. मैंने रिकैपिटुलेट किया, रिकैप होता है सीरियल का, तो मेरा दिमाग पीछे गया। My mind raced back कि ऐसे कब कब सिचुएशन जीवन में आई थी कि जब मम्मी ने मजाकिया अंदाज से उसे हवा में उड़ा दिया। My mind raced back, यानी पीछे नजर दौड़ाना। और सिक्स्थ बताओ रवींद्र। Cast the shadow. एंड विदाउट हर, अगर ऐसा ना होता तो ऐसे मोमेंट्स है कास्ट हर शैडो, तो उसकी वजह से उदासी छा जाती गैदरिंग में।
कास्ट शैडो। कास्ट शैडो का मतलब, शैडो का क्या मतलब होता है? उदासी छा जाना। यदि वो ना होती तो उदासी छा जाती। जरा अगला देखिए, इन्हीं सबको लेते हुए सेकंड पार्ट करिए। फर्स्ट पार्ट कल 9 से 11 आपकी इंग्लिश की क्लास है, इसमें इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन भी बताया जाएगा। अब अगला देखो, द राइटर्स यूजेस द वर्ड रोड। रोड का मतलब दहाड़ना, और मरमर का मतलब फुसफुसाना, और शाइट का क्या मतलब है? शर्माना। जरा सब चीज के मतलब लिख लो तो उससे तुम्हें पता चलेगा। रोड दहाड़ना, ठीक है। मरमर का क्या मतलब है? सबके बिल्कुल जरा जरा से मतलब हैं, उन सबके हिंदी मतलब समझो, और कहाँ यूज करना है उसका मतलब समझो। चलिए, अब देखिए, सो हिंदी मीनिंग ऑफ ईच। चलिए, सबका मतलब लिखो। मरमर का मतलब क्या होता है? धीमी आवाज में शिकायत करना। नोट करो, धीमी आवाज में शिकायत करना कि हाँ भाई मेरे में भी काला काला चावल है। और साइड का मतलब ठंडी सांस लेना, राहत की सांस लेना। ध्यान दीजिए, मंबल का मतलब क्या होता है? मरमर का मतलब शिकायत करना, मंबल का मतलब मुंह ही मुंह में बुदबुदाना, मुंह में ही बुदबुदाना। जैसे हर्षित जब आंसर देता है तो मुंह में बुदबुदाता है, और जब हर्ष आंसर देता है तो दहाड़ देता है। इन दोनों में ये फर्क है। इसके आंसर में एक दहाड़ छिपी है, मानो ये पिछले जन्म का शेर हो। गैस्प का मतलब हांफना। स्निकर का क्या मतलब है? चप्पल। दबी हुई हंसी, मुंह ही मुंह में हंसना, ऐसे ये दबी हुई हंसी, मुंह में हंसना, हंसी। थर्ड का क्या मतलब है? धमक की आवाज। जब पीठ में थपथपाता है हर्ष हर्षित को तो थर्ड की आवाज आती है, धमक। धमक की आवाज। अब इन सब के कल लिखेंगे। आगे लिखो, ग्रोन। वैसे तो ग्रोन होता है जब कुत्ते को कराह होती है, लेकिन कोई भी करा रहा हो तो उसको ग्रोन, कराहने की आवाज, कराहने की आवाज। अगला देखो, रेटल। रेटल स्नेक देखा है जब उसकी पूंछ खड़खड़ खड़खड़ आवाज करती है, या पेच को ऐसे ऐसे खड़खड़ खड़खड़ करो, खड़खड़ाहट, रेटलिंग साउंड, उसका नाम ही है रेटल स्नेक, खड़खड़ाहट की आवाज। देख लो अभी आ रही है, खड़खड़ाहट की आवाज। अभी तुम लोगों ने सुनी? अब देखो, रेटल। विस्पर्ड का क्या मतलब है? विस्पर्ड का मतलब कान में धीरे से कहना।
कान में धीरे से कहना। इतना ही रखो। कल इसके सबके वो करा देंगे फिर जो पढ़ा है उसको घर में तैयार कर लेना। संस्कृत पूरा करके आए हो तुम लोग? जितना पढ़ाया था उसमें से आया? हाँ? नोट लगा दिया? हाँ? हाँ